Hello students, today we are going to learn a poem There is Another Sky by Emily Dickinson. This poem is in your 11th standard English poem number 2.3. In this video I have covered explanation of poem, then brainstorming part, appreciation, which includes appreciation and figure of speech also. So before we start with the poem, let me tell you, if you are new to my channel, I would request you to visit my YouTube channel Learn with BS. You will find more videos on English grammar, English speaking, English writing skill, literature. If you like my videos, do press the like button, share it with your friends, and please subscribe to my channel. If you really like it, press the bell icon so that you get notification for my upcoming videos. So let's start with the poem There is Another Sky. This poem is written by Emily Dickinson. She was born in 1830, she passed away in 1886. An American poet of the 19th century. She lived a lonely life. Most of her poems are motivational and philosophical. They are unique to her era and are characterized by simple and short lines. She often used slant rhymes and unconventional capitalization and punctuation. Her poems are psalms and hymns of life in all shades. 19th century की पोएट थी. शी वॉज बॉर्न इन 1830 एंड शी पास अवे इन 1886. मोस्टली जो उसके पोएम्स हैं मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, फिलोसॉफी, जनरल लाइफ के ऊपर है, जो समथिंग यू लर्न फ्रॉम दैट कि हाउ लाइफ हैज़ टू बी हैंडल, हाउ लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड. There is Another Sky is an inspirational poem with a message of never say die. It is a Petrarchan sonnet with an octave and sestet. अब ये भी जो poem which we are going to do today is There is Another Sky. This is also an inspirational poem. This poem gives message that never say die. यानी कुछ भी कैसे भी circumstances होंगे you should say no. हमको इसको ओवरकम करना ही है, हारना नहीं है, मरना नहीं है, बस कैसे भी करके हमको ओवरकम करना है. अनदर थिंग अबाउट दिस पोएम इज पेट्रार्चन सोनेट. दैट मीन्स अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. उसको बोलते हैं सोनेट. अभी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया. ऑक्टेव यानी 8 लाइन्स, सेसेट यानी 6 लाइन्स. सो दिस इज अ पेट्रार्चन सोनेट. द पोएट इज communicating to her brother through a letter. She encourages her brother not to get depressed under any circumstances and pleads to him to return home. Life is full of challenges. One can tackle the challenges with a positive attitude. The poem ends on an optimistic note. The brighter garden stands for choices that life offers to all. Now, this poem she has written it is in a letter form. It is a letter which she has written to her brother. Her brother is very much depressed. Maybe something has happened to him and he couldn't solve his problem. He faced some problem in life, so he is so much depressed. So she has motivated her brother through this poem and she is telling him कि life is full of challenges. You have to handle them bravely. So she is showing him optimistic way, positiveness. She is showing how you have to be positive under any circumstances. Okay, so let us start with the poem. It is very short and sweet poem. If you see, this is 14 line poem, octave and sestet, 8 plus 6 lines. If you see 1 2 3 4 5 6 and ऊपर का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is called sestet, 8 plus 6. सोनेट यानी 14 लाइन जो इसको दिया है 8 plus 6 लाइन में. 14 लाइन की पोएम सोनेट. देयर इज अनदर स्काई एवर serene and fair. Now poet is telling her brother कि there is another sky. What does it mean? कि हमारे ऊपर जो स्काई है उसके अलावा स्काई. शी वॉन्ट्स टू से बाई दिस कि there is always another hope. Abhi if you are surrounded by darkness, if you have circumstances wherein you are not
हैप्पी, तो देर आर अदर थिंग्स लाइक देर इज़, अभी जैसे आपने सुना होगा, एवरी ब्लैक क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कितना भी स्काई में ब्लैक क्लाउड्स हैं पर उसको भी सिल्वर लाइनिंग रहती है, यानी इट हैज़ सम रे ऑफ होप। तो शी इज़ ट्राइंग टू टेल हिम कि जो आसमान के नीचे तुम खड़े हो वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है, वहाँ तुमको दूसरा भी स्काई मिलेगा, यानी कि दूसरी भी प्लेस है, दूसरा भी टाइम आएगा जब भी तुम खुश होगे, हैप्पी होगे। देयर इज़ अनदर स्काई एवर सेरेन, सेरेन यानी जो होता है शांत, काम, क्वाइट एंड फेयर। दूसरा भी स्काई है ना, दूसरी भी जगह है जहाँ पे शांत और अच्छा है, यही एक आसमान नहीं है। एंड देयर इज़ अनदर सनशाइन दो इट बी डार्कनेस देयर, तुम जहाँ पे हो शायद वहाँ पे अंधेरा होगा, बट कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सनशाइन भी है। इफ़ यू नो, अर्थ के एक साइड सनशाइन होता है, दूसरी साइड डार्कनेस। अगेन व्हेन द सन चेंजेस इट्स डायरेक्शन, पोजीशन, तो दूसरे साइड अर्थ के क्या होता है, रोशनी आ जाती है, पहले वाले साइड में अंधेरा हो जाता है। तो व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, तो डार्कनेस एंड सनशाइन दी ऑल्टरनेटिवली दे कीप कमिंग इन एवरीवन्स लाइफ। तो लाइक दिस पोएट इज़ ऑल्सो टेलिंग हर ब्रदर कि तुम्हारे यहाँ पे अगर डार्कनेस है तो कहीं ना कहीं सनशाइन है, वो सनशाइन लौट के वापस तुम्हारे पास आएगी, अंधेरा चला जाएगा। नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन, नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स। अपने भाई को, ऑस्टिन इज एमिलीज यंगर ब्रदर, उसको बोल रही है कि डोंट माइंड, बुरा मत मानो, दुखी मत हो अगर तुम्हारे यहाँ पे फेडेड फॉरेस्ट यानी जो फॉरेस्ट हैं डल हो गए हैं, उसके पत्ते मुरझा गए हैं या कि डल हो गए हैं, दे आर नॉट डार्क ग्रीन, फेड हो गए हैं। नेवर माइंड साइलेंट फील्ड, फील्ड में अगर शांति है, कुछ आवाज़ नहीं है, साइलेंस है, तो भी डोंट फील बैड। हियर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट हुज लीफ इज़ एवर ग्रीन, यहाँ पे एक फॉरेस्ट है जिसके पत्ते हमेशा ग्रीन रहते हैं। हियर इज़ अ ब्राइटर गार्डन वेयर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज़ बीन, यहाँ पे एक गार्डन है, ब्राइटर है, शाइनिंग वाला है, जहाँ पे कभी भी फ्रॉस्ट नहीं हुआ है। फ्रॉस्ट यानी जो सुबह को आप देखते हो ठंडी के टाइम पे ओस रहती है पत्तों पे, when a temperature is below 0 degree centigrade, a thin layer of ice forms on the ground and other surfaces, पत्तों पे ऐसे आइस का लेयर फॉर्म बन जाता है, तो होता है फ्रॉस्ट। तो यहाँ पे गार्डन जो है ब्राइटर है, यहाँ पे कभी भी ओस नहीं आई, फ्रॉस्ट नहीं आई। इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स आई हियर द ब्राइट बी हम, उसके जो फ्लावर्स हैं फेड नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो गार्डन है उसके पत्ते फेड नहीं हुए हैं, यानी दे आर ऑलवेज कलरफुल, इट हैज़ ऑलवेज कलरफुल फ्लावर्स। और मैं देख रही हूँ कि जो बी है, आई हियर दी ब्राइट बी हम, यहाँ पे बीज जो है हमिंग कर रही हैं, आवाज़ करी, यानी वो खुश हैं, खुश होके वो हमिंग करें। पृथ्वी माई ब्रदर इन टू माई गार्डन कम, पृथ्वी शी इज़ टेलिंग प्लीज़, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है पृथ्वी यानी प्लीज़, यू माई ब्रदर यू प्लीज़ कम इन टू माई गार्डन, यानी जहाँ पे तुम्हारे लिए डार्कनेस है, दुख है, तो वो दुख को छोड़ दो, कभी ना कभी तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर शाइनिंग आएगी, ज़रूर हैप्पीनेस आएगी। सॉरोज एंड हैप्पीनेस और पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कभी दुख कभी रात, कभी दिन कभी रात, दुख कभी सुख, कभी रात कभी दिन, ऐसे होता ही रहता है लाइफ में। तो शी इज़ ट्राइंग टू इनकरेज योर ब्रदर कि अगर तुम्हारे पास अभी दुख है तो दुख वो हमेशा नहीं रहेगा, जैसे डार्कनेस है तो वहाँ पे सनशाइन ज़रूर आएंगे, पत्ते फेड हो गए हैं तो फ्रेश पत्ते ज़रूर आएंगे, फ्लावर्स ज़रूर आएंगे। तो तुम दुखी मत हो और बी हैप्पी, ट्राई टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स, बी ब्रेव, ट्राई टू लिव योर लाइफ हैप्पीली, ब्रेवली। सो दिस इज़ वॉट एमिली डिकिंसन इज़ teaching her brother through this poem. I hope this poem is clear to you. Let us now do the brainstorming of this poem. Imagine your sister is not paying attention to her studies and is seen wasting time playing games on her cell phone. Suggest some ways that will help her to concentrate on her studies and overcome her bad habit. अभी आप क्या बोल सकते हो जो concentrate नहीं कर रही अपने पढ़ाई पे? तो you can say like make a timetable, regularly do your lessons, don't watch TV or don't use mobile phone for a longer time. So whatever things come to your mind, you can write it down.
You have noticed that many of your classmates are not interested in outdoor games or participating in co-curricular activities. Discuss some ways in which they will be encouraged to participate in activities. अपने क्लासमेट को बोलना है वो क्या कर रहे हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स गेम्स में पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपको उनको इनकरेज करना है. तो यू हैव टू शो पॉजिटिव साइड, लाइक स्पोर्ट्स करने से योर बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल, इट्स अ गुड एक्सरसाइज, and your mind becomes fresh because you go into open air, open sunlight. तो आपका दिमाग शरीर एक्टिव होता है, चुस्त होता है. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी, फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है. तो दीज थिंग्स यू कैन टेल देम. Discuss with your partner and complete the wave highlighting the sad and gloomy aspects of life mentioned in the first part of poem. अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ पोएम में कुछ सैड एंड ग्लूमी एस्पेक्ट्स बताए हैं ना, जो दुख की बातें, सैड थिंग्स बताई हैं. तो दैट यू हैव टू राइट इन दिस वेब डायग्राम. दैट इज डार्कनेस, आइसोलेशन, साइलेंस. आइसोलेशन यानी अकेले में रहना, साइलेंस, डार्कनेस, ये सब बताइए. द पोएट encourages a brother in the second part of the poem by telling him about the brighter side of life. Discuss with your partner and make a list of expression in the poem that mean encouragement. अभी यहाँ पे क्या दिखा है, sad and gloomy aspects. Now you have to show positive side, okay, brighter side of life. तो वो क्या बताया था पोएम में, brighter garden, unfading flowers, hum of bright bees, यानी खुश होके बीज गा रही हैं, फ्लावर्स जो है फेडेड नहीं है यानी ब्राइट है. So this was positive side shown in the poem. Poet has described two different shades of human feeling by using imagery of various forces of nature in the poem. Pick out the terms or phrases that describe them. Complete the table given below. One is done for you. अभी faded forest. What do they indicate? क्या फीलिंग आती है उनको देख के? सैड एंड ग्लूमी. जैसे फॉरेस्ट डल हो गए हैं वैसे ही हमको भी सैड और ग्लूमी फीलिंग आती है. साइलेंट फील्स देख के क्या आती है कि हम अकेले हैं, आइसोलेशन, लोनलीनेस, अकेले हो गए. सनशाइन देख के हमको क्या फीलिंग आती है? होप, न्यू रेस, होप आती है. द पोएम एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ सेरेनिटी यानी शांति, कामनेस. पिक आउट एक्सप्रेशंस फ्रॉम द अबव पोएम दैट एक्सप्रेसेस द सेम. इसके जैसे अकेला जैसे है एक्सप्रेस सेरेनिटी की फीलिंग आती है, तो और ऐसी एक्सप्रेशंस आपको पोएम में से लेनी है. जैसे देयर इज़ अनदर स्काई, फेयर, सीरेन एंड फेयर, हेयर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट हुज लीफ इज़ एवरग्रीन. लाइक दिस यू कैन राइट एनी टू लाइन which show the expressions from the poem about the same. Compare and contrast the two opposing human feelings as expressed by the poet. दो फीलिंग्स एक्सप्रेस की है पोएट ने, उसको बतानी है. ऑपोजिट, कंट्रास्ट यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट. जैसे देयर आर टू साइड्स ऑफ लाइफ, डल एंड हैप्पी. वी शुड इग्नोर ग्लूमीनेस एंड एन्जॉय हैप्पीनेस. पोएट ने पूरी पोएम में, पोएटेस ने अपने भाई को यही सिखाया है कि लाइफ में दोनों चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं. कहीं जगह पे डल है तो कहीं हैप्पीनेस है, तो दोनों ही हैं. दीज विल कीप कमिंग टू यू ऑन अ रोटेशन वाइज. अभी डल है तो कभी खुशी आएगी, कभी दुख है तो खुशी आएगी. तो वो दोनों कंट्रास्ट आइडियाज़ बताई हैं, फीलिंग्स बताई हैं पोएटिस ने. नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन. द वर्ड फेडेड मीन्स डिम और फेंट, डल. The word describes the forest that have become faint or dim in appearance. Now go through the poem again and complete the table. Describing words, कुछ describing words यूज़ किए हैं पोएम में, जैसे faded. तो क्या किसके लिए यूज़ किया है, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? फॉरेस्ट के लिए. फेडेड फॉरेस्ट लिखा था, if you remember. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द फॉरेस्ट हैव बिकम फेंट और डिम इन अपीयरेंस, डल हो गए हैं. तो वैसे ही दूसरे भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पोएम में यूज़ किए थे, जैसे साइलेंट, अनफेडिंग, ब्राइट. तो वो किसके लिए यूज़ किए थे? साइलेंट फील्ड्स, अनफेडिंग फ्लावर्स, ब्राइट बीज. नाउ यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन. साइलेंट फील्ड्स मीन्स द प्लेस इज साइलेंट एंड लोनली. सॉरी, हियर आई हैव रिटन लवली, इट इज़ लोनली. अनफेडिंग फ्लावर्स यानी फ्लावर्स आर फ्रेश एंड कलरफुल, डल नहीं है. ब्राइट बीज यानी बीज आर हमिंग अराउंड द फ्लावर्स, खुश होके. Okay, now poem में से you always get two poetic devices like appreciation of poem and figures of speech. तो ये poem में भी कुछ figure of speech यूज़ की गई हैं. Let us discuss them. I hear the bride bee hum.
The poet has used the word hum that indicates the sound made by bee. This is an example of onomatopoeia. कि एक कोई भी लाइन में अगर ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया है विच रिप्रेजेंट्स अ साउंड, जैसे टिंग टिंग ट्रिंग ट्रिंग, इट इज़ बेल का साउंड. इफ़ यू से हिसिंग, इट इज़ स्नेक का साउंड. लाइक दिस कोई भी साउंड का, नॉक इज व्हेन यू प्रेस विद द नकल्स ऑन द डोर. तो ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया है एक सेंटेंस में जो कि साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देन फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया. सो हियर हमिंग रिप्रेजेंट्स व्हाट, जो बीज आवाज़ करती हैं उसको बोलते हैं हमिंग. तो ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया तो दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच विल बी ओनोमेटोपिया. वैसे ही दूसरी भी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की हैं, एलिट्रेशन, इन्वर्शन, हाइपरबली in the poem. Now you have to give one example of each. Hyperbole का example I have written, here is brighter garden where not a frost has been. यहाँ पे ऐसा गार्डन है जहाँ पे कभी एक फ्रॉस्ट नहीं आया है, तो दिस इज एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बताना, तो फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबली. एलिट्रेशन क्या होता है, व्हेन अ साउंड और अ लेटर इज रिपीटेड इन अ सेंटेंस फॉर पोएटिक इफेक्ट. जैसे नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट. नाउ इफ यू सी फेडेड फॉरेस्ट, एफ साउंड इज रिपीटेड इन द लाइन. आई हियर द ब्राइट बी हम, ब्राइट बी साउंड इज रिपीटेड. सो व्हेन a letter or sound is repeated in the same sentence or poetic effect, it is alliteration. So these two are examples of alliteration. Inversion. Now what do you mean by inversion? When words are not written in correct prose order, jumbled way में लिखा है, उल्टा पुल्टा लिखा है. जैसे पृथ्वी my brother into my garden come. करेक्ट प्रोज ऑर्डर क्या होना चाहिए, माई ब्रदर पृथ्वी कम इन टू माई गार्डन, ऐसे होना चाहिए था, बट उल्टा पुल्टा लिखा है जस्ट बिकॉज मेक इट राइमिंग. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड इन्वर्शन. देन वी हैव एंटीथेसिस. एंटीथेसिस यानी ऑपोजिट आइडियाज. व्हेन इन अ सेंटेंस ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट आइडियाज आर यूज्ड, एंड देयर इज अनदर सनशाइन दो it be darkness here. So sunshine, darkness are opposite ideas used. So figure of speech is antithesis. Okay, now you have to give appreciation of the poem. Points are given. Use the following points and write an appreciation of the poem. About the poem, poet and title. अभी poem कौन सी है, There is Another Sky by Emily Dickinson. It is inspiring poem. She is inspiring her brother who is depressed. Theme यानी central idea of poem क्या है, poet is encouraging him to overcome his frustration. If one door closes, there is always another door. Poetic style, language, poetic device used in the poem. Motivational poem है, poetic device जो use किए हैं, now we did it. Antithesis, hyperbole, inversion, they are used. And it is very simple language. अगर आप poem पढ़ोगे तो बहुत simple language है, anybody can understand. Special feature, खास बात क्या है ये poem की, it's a Petrarchan sonnet poem with octave यानी 8 lines and sestet यानी 6 lines. So ये इसकी खास बात है. Message और values, morals in the poem. क्या moral मिलती है, क्या message मिलता है, message of positivity, hopefulness, bravery, बहादुर बनना है, positive सोचना है, hope रखनी है लाइफ में. So this is the message given through this poem. Your opinion about the poem? I like this poem as it gives me optimism, never say die attitude, and this has changed my look towards life. So like this you can write. So I hope I have tried to cover up all activities related to poem along with the explanation. Thank you for guys for your patience.